راہل گاندھی صاحب کو کہے کہ جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے ان کے پارٹی میں ان کے مینیفیسٹو میں 370 کا ذکر ہے. کیا کانگریس میں ایسا کوئی مینیفیسٹو ہے کہ جس میں 370 بحال کرنے کا ذکر ہے؟ نوجوان اگر میکڈمائزڈ روڈ پہ محفوظ نہیں ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ مجھے کس کام کی؟ صحیح. میں یہی کہتا ہوں کہ جو وہ وعدے کرتے ہیں ان وعدوں پہ انہوں نے کبھی کام کیا ہے یا وہ وعدے پورے کیے گئے؟ ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے، چاہے اگر ہم پچھلے 10 سالوں سے دیکھیں گے یہاں پہ کوئی سرکار نہیں تھی، روڈ میکڈمائزڈ پھر بھی ہوتے تھے، لیکن کیا آپ ان چیزوں سے مطمئن ہیں؟ نہیں ہیں. آپ راہل گاندھی جی سے کہیے کہ این سی کے ساتھ جو الائنس ہوا ہے انہوں نے 370 کا ذکر کیا ہے، ہم 370 واپس لائیں گے. کیا راہل گاندھی اس سے وہ اتفاق رکھتے ہیں ان کی اس الائنس کے مینیفیسٹو سے؟ ناظرین محترم السلام علیکم. آج کے شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اسمبلی انتخابات 18 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں اور اس بیچ اگر ہم بات کریں گے اسمبلی حلقہ پلوامہ کی، اگر ہم بات کریں گے یہاں پر کل ملا کے اگر ہم بات کریں گے 14 امیدواروں نے اپنے کاغذات پیش کیے تھے، جن میں سے 2 کے کاغذات جو ہے وہ خارج کیے گئے ہیں اور کل ملا کے میدان میں اب 12 امیدوار جو ہے اپنی سیاسی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. آج ہمارے بیچ آزاد امیدوار ڈاکٹر طلعت مجید جو ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے، جو کہ حلقہ کا پلوامہ سے آزاد امیدوار کے طور پر اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. طلعت صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پلوامہ کے لوگوں نے کافی سارے مصیبتیں جھیلی ہیں، تو آپ فیلڈ میں آئے، آپ کا کیا کچھ رہے گا پلوامہ کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، سیاست میں جیسے آپ نے کہا کہ پلوامہ کے لوگوں نے بہت سے مصائب جھیل لیے. صحیح. یہی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں سیاست میں آیا، اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جن چیزوں کی بات کر رہا تھا اس سے سیاست میں آنے سے پہلے بھی، اور یہی سب کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ سب سے اگر بات کریں گے تو میرا نوجوان جو ہے وہ ان حالات کا زیادہ شکار ہو گیا. میرا یہی مقصد ہے کہ میرا نوجوان کیسے محفوظ رہے. سب سے زیادہ میرا ایجنڈا جو رہے گا کہ ٹو سیو دا ہیومن ریسورس. جو ہمارا نوجوان ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہماری قوم کا مستقبل ہمارا نوجوان ہوتا ہے. تو بس یہی چیزیں رکھ کے میں سیاسی میدان میں آیا. انہی چیزوں کو میں مدعا بھی بناؤں گا اور انہی چیزوں کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ میرا نوجوان کیسے محفوظ رہے. پھر دوسری چیزیں پھر ہوتی ہیں ضروریاتی زندگی. جب ایک نوجوان محفوظ رہے گا تو پھر کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک سیاسی استحکام ہو، معاشرے میں امن ہو. اور امن سیاسی استحکام کے بغیر یا سیاسی استحکام کے بغیر امن، یہ لازم، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. تو ان چیزوں پہ بات کریں گے. پھر ضروریاتی زندگی جو ہوتی ہے کہ ہم ایک عام شہری کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا وہ چیزیں جو باقی یہی سرکاری پچھلی بار بھی رہی ہے، جو مدعے وہ اٹھاتے تھے کہ کیا وہ ان مدعوں کو پھر وہ ساری چیزیں کرتے تھے جو اپنے مینیفیسٹو میں لکھتے ہیں، کیا ان چیزوں پہ پھر عمل درآمد ہوتا تھا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اگر ہم دیکھیں گے جو روایتی سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں میں بالکل ناکام رہے ہیں. اپنے مدعے تو پہلے ان کو اب وہ مینیفیسٹو میں تو لاتے ہیں، لیکن پھر ایسا کام نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے وسادت سے بھی اور لوگوں کے پاس جا کے بھی میں ان کو یہ یقین دہانی دلاتا ہوں کہ ہم جن چیزوں کا وعدہ کریں گے ہم وہ کر کے رہیں گے، اور ہم ان چیزوں کا وعدہ نہیں کریں گے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی لے کے ہم جو ہے حقیقت پسندانہ سیاست کریں گے انشاءاللہ. تو جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ جنہوں نے یہاں پہ جو دور حکومت میں رہے باقی سیاسی پارٹی، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 70 سالوں سے کچھ نہیں کیا. تو کیا آپ کا کیا مدعا رہے گا اب؟ دیکھیں، یہ کچھ نہیں کیا ہے یہ الفاظ نہیں ہے. کچھ نہیں کیا مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ جن چیزوں کا ذکر کرتے تھے اپنے مینیفیسٹو میں، وہ جن چیزوں کا ذکر کرتے تھے ان پہ کبھی بات ہوئی؟ یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ وہ 370 کی اس بار بھی انہوں نے مینیفیسٹو میں 370 لکھا ہے. کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعتاً قابل حصول کوئی چیز ہے؟
तो उन चीज़ों का वादा करो ना कि जो मेरे माशरे की जिन चीज़ों की ज़रूरत है। आप जज्बात पे सियासत करते हैं। मैं वही कहता हूँ कि जो जज्बात भड़काए गए और जो जज्बात जिन जज्बातों के ऊपर सियासत की जाती है, क्या उन्होंने वो काम किए। बाकी रही डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट तो देखिए आप देखिए कि डेवलपमेंट होती रहती है, थोड़ी का ये कम हो ज़्यादा हो होती रहती है। मैं सियासी इस्तेकाम की बात करता हूँ कि जब सियासी इस्तेकाम माशरे में हो तब जाके डेवलपमेंट हमें दिखती है। मेरा नौजवान अगर मैकडमाइज्ड रोड पे महफूज नहीं है तो वो डेवलपमेंट मुझे किस काम की। सही। मैं यही कहता हूँ कि जो वो वादे करते हैं उन वादों पे उन्होंने कभी काम किया है या वो वादे पूरे किए गए। डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे अगर हम पिछले 10 सालों से देखेंगे, यहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, रोड मैकडमाइज्ड फिर भी होते थे, लेकिन क्या आप उन चीज़ों से मुतमईन हैं? नहीं है, क्योंकि सियासी इस्तेकाम नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोग अपने आप को महफूज नहीं कर रहे हैं। तो अब जब ये इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, क्या वो वाकई उन चीज़ों पर काम करेंगे? क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने डूरू अनंतनाग में बोला कि हम जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा जो है वो वापस देंगे, क्या आपको लग रहा है कि वो उस पर उतरेंगे, या आपको ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से आप मैदान में आए हो आपकी क्या कोशिश रहेगी इस हवाले से? देखिए, मैं स्टेटहुड की बात नहीं करूँगा। स्टेटहुड मेरा हक है, क्योंकि वो तो मुझे ज़बरदस्ती छीना गया था। स्टेटहुड को तो बार मैं ये कहता हूँ कि उनको इलेक्शन से पहले ही देना था। स्टेटहुड क्यों नहीं देंगे? ये हमारा हक है। बाकी रहा कि राहुल साहब ने जो स्टेटहुड बहाल करने का, ये तो यहाँ का एक आम एमएलए भी कहता है कि मैं स्टेटहुड बहाल करूँगा। राहुल गांधी साहब को कहे कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया है उनके पार्टी में उनके मैनिफेस्टो में 370 का जिक्र है। क्या कांग्रेस में ऐसा कोई मैनिफेस्टो है कि जिसमें 370 बहाल करने का जिक्र है? ये चीज़ें तो हर एक मुद्दा उठाता है। इसमें राहुल गांधी ने बात की तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं भी कहता हूँ कि मैं स्टेटहुड बहाल करने की कोशिश करूँगा। तो राहुल गांधी और मेरे बयान में क्या फ़र्क रहता है? आप राहुल गांधी जी से कहिए कि एनसी के साथ जो अलायंस हुआ है उन्होंने 370 का जिक्र किया है, हम 370 वापस लाएंगे। क्या राहुल गांधी उससे वो इत्फाक रखते हैं उनकी उस अलायंस के मैनिफेस्टो से? ये बात होनी चाहिए। ये तो छोटी बात है, स्टेटहुड बहाल कराना या इस पे काम करना। ये तो एक आम एमएलए भी कहता है कि हम कोशिश करेंगे, हम स्टेटहुड बहाल करेंगे, हम कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ कि ये हमारा हक है, इनको तो खुद ही देना था और इलेक्शन से पहले ही देना था, क्यों नहीं देंगे? तो जिस तरीके से आपने भी बोला कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में उतरता है वो लोगों को वादे देता है और फिर उन पे नहीं उतरता है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? क्या आप पुलवामा के लोगों के लिए करोगे? मैं सिंपल सा मैनिफेस्टो है मेरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। उन एजुकेशन और इकोनॉमी में हर एक चीज़ आती है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो डेवलपमेंट, चाहे वो हार्टिकल्चर सेक्टर में हो या हेल्थ सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में इकोनॉमी की जब आप बात करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ आती है, चाहे वो मैकडमाइज्ड रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक चीज़ उसमें आती है। इन चीज़ों पे बात करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। हम गरीब जो फैमिलीज़ है जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम काम करेंगे कि उनको मैरिज फंड मिलना चाहिए। विडोज़ के लिए हम काम करेंगे कि उनके ये एक आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई बेवा औरत होती है तो फिर उसके 2-3 बच्चे भी होते हैं, तो उसकी उस ज़िंदगी पे वो कैसे वो ज़िंदगी गुजार रही है, क्या इन चीज़ों को हमने देखा है? हम उस पे काम करेंगे कि उनकी लाइफ कैसे सस्टेन हो, और उस पे काम करेंगे कि क्या उनके लिए हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि हम उनके लिए एक वो मंथली कुछ हो सकता है सरकार से, हम इस पॉलिसी पे काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ बहनें या बेटियों का कोई जब डाइवोर्स होता है तो उनके लाइबिलिटी उठाने के लिए कोई नहीं होता है। मैं कहता हूँ, मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम उनके लिए वकील प्रोवाइड करेंगे, सरकार की तरफ से करेंगे। उनके लिए एक वकील हो जो उनके वो मामला देख ले जो अदालत में उस वक्त चल रहे होते हैं। हम तैलीमी मैदान में हम कहते हैं कि हम अपने माशरे में ऐसा एक माहौल बनाएंगे कि हर एक टाउन लेवल पे या इवन विलेज कम्युनिटी लेवल पे हम लाइब्रेरीज़ कायम करेंगे, एक वो मुताला का एक वो माहौल पैदा करेंगे। इसी से एजुकेशन की सेक्टर में आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। हम अपने नौजवान को उस नाहिश पे डाल देंगे, उनको एक ट्रैक बना के देंगे कि एजुकेशन और इकनॉमी का जो ट्रैक है अगर वो फॉलो करेंगे, ये 2 चीज़ें मेरे नौजवान के हाथ में आ गई तो हमारे सब सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
पुलवामा असम्बली हल्के में 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, उनमें से आप भी एक हो, तो काफ़ी टफ लग रहा है मुझे। क्या आप सीट निकाल पाओगे पुलवामा से? बहसीत मुसलमान हमें इस चीज़ पर ईमान होना चाहिए, अल्लाह मालिकुल मुल्क तूतियल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। जहाँ तक मेहनत का सवाल है, हर एक उम्मीदवार अपनी मेहनत करता है, मैं भी करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, जितना भी मेरे इस छुप महदूद वसाइल से, जो मेरे पास महदूद वसाइल इस वक्त हैं कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, मेरे पास उतने वो जो वसाइल जो ज़राया ये इस्तेमाल करते हैं मेरे पास उतने है ही नहीं, लेकिन मैंने कहा कि उसके बाद अपनी मेहनत अपना सब कुछ लगा के उसके बाद फिर ये इक़्तिदार देना और इक़्तिदार लेना ये अल्लाह के हाथ में होता है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस तरीके से लोगों के पास जाए जैसे कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि उसमें एक फार्मूला होता है कि अगर कोई इंसान ये इक़्तिदार किसको दिया जाता है या किससे लिया जाता है, इसमें एक अल्लाह ताला का एक कानून है जिसको हम बनाव और बिगाड़ कहते हैं। हम लोगों के पास वो बनाव की हैसियत से हम कहेंगे कि हम तामीरी जो काम होते हैं हम उस पे बात करेंगे, तो दुआ भी करेंगे अल्लाह से कि वो लोगों के दिल मेरी तरफ माइल करें और अल्लाह ताला ने चाहो तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी ज़रूर। तो जिस तरीके से यहाँ पर 10 साल के बाद अब जो असम्बली इलेक्शंस हुए, तो आप इस हवाले से बताएं आप कितने खुश हो? तो ये कभी कभी हमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अगर 10 साल की गैप लगी है, मैं समझता हूँ कि इसमें शायद हमें लोगों को सोचने का मौका मिला हो कि हमें 10 साल के बाद अब एक जमहूरी हुकूक जो है वो बहाल हो रहे हैं, हमें वोट डालने का एक हक मिल रहा है। अब इस वोट को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। 10 साल की गैप बहुत ज़्यादा होती है, इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ झेला भी, देखा भी, सुना भी, तो अब हमें सोच समझ के वोट डालना चाहिए। शायद मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारा हो कि 10 साल का मौका मैंने आपको दिया है सोचने के लिए, अब किन चीज़ों को हमें, किन लोगों को हमें अपनी असम्बली में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजना होगा। क्या इस पर कभी काम हुआ है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कर सकते हैं अपनी वैली में? यहाँ पर हमारे कुदरती वसाइल इतने हैं जिनको एक्सप्लोर आज तक नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूँगा, मैं एक सेक्टर की बात करूँगा, अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे, पूरी दुनिया में जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं आपका 37% सिर्फ आपके कश्मीर में मौजूद है। ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं कि हम 10 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या 10 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपका 60% जो अनएम्प्लॉयड यूथ है आप उनको उसमें एंगेज करा सकते हैं। क्या इस पर कभी काम हुआ है? हम इन चीज़ों को काम करेंगे। जितने भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी यहाँ पर कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बतौर नियामत अता की गई है, हम उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उससे रोज़गार भी होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एजुकेशनल इकनॉमी, ये दो चीज़ें मेरे नौजवान के हाथ में आ गई। सुना जा रहा है कि आप जमात इस्लाम में से पहले ताल्लुक़ रखते थे, तो इस हवाले से आप बताइए। जी, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा जमात के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है और आज भी वही ताल्लुक़ है। आज भी बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जैसे आपने सुना होगा कि जमात इस्लामी बस बज़ात खुद अपना उम्मीदवार तो खड़ा नहीं कर सकती है जमात के नाम पर, लेकिन आज़ाद उन्होंने अपना बयान दिया। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि मेरे ही घर पे जो सारी उस वक्त जो जमात से जुड़े लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और जितने भी कैंडिडेट्स हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। उनमें एक मैं भी हूँ और बाकी जो 2 साथी और थे, 3 साथी और थे, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये सही बात है कि मैं बहैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार जमात बैकवर्ड कैंडिडेट पुलवामा से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर तलत मजीद, जो कि
اسمبلی حلقہ پلوامہ سے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے لوگوں کے لیے یہ اچھا کام کریں گے اور ڈیولپمنٹ کو زیادہ ترجیح دیں گے.